Namaskaram and good morning all. And with this current news is about the income tax raid, I just wanted to ask you only one thing. Do you think the section 132 is a theoretical section or practical section? The section 132 of Income Tax Act, which talks about search and seize the power, is a theory section or is a practical section? Thank you, ma'am. Definitely practical, sir. Thank you, Somnath. So this is practical because it is happening all around us. You might not be aware of it because we are not, continuous readers of income tax related news. So I showed you certain news which has happened in Mumbai. And because these people were very famous celebrities, therefore their news came up. That doesn't mean in a year only one or two raids happens. One or two very famous raid happens. Raid happens almost every week, every month. Somewhere it is going on right now. And a Mumbai team raided Bhopal premises. You know, in one of the news they were saying, Mumbai and Delhi team raided Bhopal. Bhopal, you understand? In one of the news they said they raided 30 premises at a time. Then in one of the news they said nobody is allowed to go inside and nobody is allowed to come outside of the building premises. So all these are practical things, my dear friend. So unless and until you understand the practicality of the income tax raid, reading theory will become just a boring task. Apart from that, if you are interested into movies and all, I have already asked you to watch movie Raid. The formalities which was followed in that movie are written under section 132. That how they enter into premises, how they get the approval, they go to the income tax officer goes to the chief commissioner of India, a chief commissioner of income tax. He takes the approval and then he comes and read. He takes the support from the local police. He calls for the witness from the neighbor house, who the teacher. So all those things are picturized very well in the Raid movie. So अगर आपको ये सेक्शन पढ़ना है और प्रैक्टिकली देखना है तो देयर इज ऑलवेज अ मूवी. और कुछ नहीं तो ये जो न्यूज मैंने आपको 3-4 न्यूज दिखाए उसकी तरह के बहुत सारे न्यूज है. You just have to watch few news continuously, then you'll understand. Yes, income tax department have eye on you and me and everyone. It's only matter of time that today you are evading taxes. That means you cannot escape from income tax department for the life. This year, next year, next to next year. In Anurag Thakur case, they closed the firm. They told you in news, right? In 2018, the firm was closed, but in 2021, raid happened. Yeah, are you getting this? Some tax evasion happened before 2018. In 2018, they closed the firm also, but raid has happened in 2021. So you need to understand the seriousness of the topic. कि हम क्या कर रहे हैं, okay? Obviously, after raid, okay, this is also seen. After income tax raid, don't you think the name of the person will be defamed? We call it defame. Defame means नाम खराब हो जाएगा, right? जिसके भी ऊपर इनकम टैक्स का रेट आता है उसका नाम खराब हो जाता है. 100% श्योर है? नाम खराब हो जाता है. Your close relative will not take your calls. Your business partners will not do business with you. If your children are going to the school, they will be teased. They will be mocked by the other students. पूरे इंडस्ट्री में आपका नाम खराब हो जाता है. Nobody is liking to sign contract with you because today you are on income tax rate. Tomorrow you might cause some problem with that another firm who is doing business with you. So don't you think the income tax authorities cannot conduct the search randomly? चलो आज राम पाटिल का घर सर्च कर देते हैं, आज विजय का घर सर्च कर देते हैं, आज अमय का घर सर्च कर देते हैं. Randomly they cannot come in our house. They need to have something strong against us. उनके हाथ में कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए ना. आपने अजय देवगन का मूवी देखा होगा तो आपको पता है वो पूरा एक महीना वो पूरे आपको अपने मूवी देखा होगा तो देखो थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्या. पूरा एक महीना वो घूमते रहता है, पूरा ऑटो रिक्शा से कोल माइन पे जाता है, वो क्या बोलते हैं जहाँ पे ब्रिक्स बनता है वहां पे जाता है. He collects lots and lots of information and then he goes to Delhi to take the approval
और दिल्ली जब जाता है तो वहां पे एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू बताना पड़ता है कि गवर्नमेंट को एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना आएगा, समवेयर अराउंड 300 करोड़, समथिंग लाइक दैट ही सेज, वो कुछ तो अमाउंट होता है एक, राइट। तो हमारे पास जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होते, एंड अनलेस एंड अनटिल यू हैव अप्रूवल फ्रॉम द सीनियर अथॉरिटीज, यू आर नॉट सपोज टू इनिशिएट द सर्च। सर्च इनिशिएट करने का पावर लोअर रैंक ऑफिसर्स के पास नहीं है. The power is lying with the higher rank officers because it is very serious matter. Okay, very, very serious matter. So who can authorize the proceedings? Or let me show you from this particular my notes. Search and seizure. I hope everyone got this particular point. Search and seizure. Yesterday we have kept this point untouched. It should be around page number 299 in your printed notes. So section 132, procedure to search and seizure. Who can authorize search and seizure? Issue search warrant. तो authorization means search warrant. Movies वगैरह में आप लोगों ने search warrant के नाम से सुना हुआ है. Okay. तो search can be authorized by PCCIT, CCIT, PDGIT, DGIT. मतलब क्या हो गया? चीफ कमिश्नर लेवल के जो लोग हैं वो लोग कर सकते हैं, या तो डायरेक्टर जनरल या तो चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया. बार बार इंडिया आ रहा है. चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और उनके जो सीनियर होते हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर. सर ये लोग तो कर ही सकते हैं. फिर पप्पा लोग कौन होते हैं डिपार्टमेंट के? तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल कमिश्नर, ये लोग कभी भी सर्च को ऑथोराइज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन कभी कभी क्योंकि लोड ज्यादा होता है तो सीबीडीटी लोअर रैंक ऑफिसर्स को भी पावर दे देता है. तो एडिशनल सीआईटी, एडिशनल डीआईटी या जेसीजेडी, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, ये लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ओनली इफ इट इज एम्पावर्ड बाय सीबीडीटी. इसका क्या मतलब है? कौन नहीं कर सकता? सर एसीडीसी नहीं कर सकते, आईटीओ नहीं कर सकते. ये जो बाकी के दो ऑफिसर बच गए, फिर उसके बाजू में एडीडीडी भी होता है, एडिशनल डायरेक्टर एंड डिप्यूटी डायरेक्टर. ये लोग सर्च इनिशिएट नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर रेगुलर एओज. ये जनरल एओ होते हैं. एओ के पास पावर नहीं है सर्च का वारंट इश्यू करने का. दिस पावर इज लाइंग विद हायर अथॉरिटीज. चलो ठीक है. नेक्स्ट सर, दिस इज हु कैन ऑथोराइज द सर्च. हु तो पता चल गया सर कौन सर्च वारंट इश्यू करेगा. But it's not that these people will use their power randomly. There are certain circumstances under which the search can be initiated. And what are those situations or circumstances when the search can be authorized? So if above authorities have reason to believe word को मैंने आपको पहले भी explain किया है. This word is coming for the second time. First time ये आया था section 147 में. Do you remember 147 में? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में हमारे पास ये वर्ड आया था, रीजन टू बिलीव. रीजन टू बिलीव का मतलब होता है आपके हाथ में कंक्लूसिव एविडेंस है. कंक्लूसिव एविडेंस है किस चीज का? एनी पर्सन टू होम नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). 142(1) मतलब राय नोटिस. समन अंडर सेक्शन 131. समन याद आ रहा है? कल की 4 पावर, देसी पावर, देसी 131 में देसी पावर था ना. 4 पावर थी उनके पास. डिस्कवरी एंड इन्फेक्शन, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस. ओके, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ये सब वो कर सकते हैं ना. और आपका इन्फोर्सिंग अटेंडेंस में मतलब वहां पे भी था, दे कैन इश्यू द कमीशन या समन. आपको समन आ सकता है और आप अगर नहीं जाओगे वहां पे तो फिर अगर आप डिपार्टमेंट में नहीं गए तो डिपार्टमेंट आपके घर पे आ जाएगा. ठीक है. तो 142(1) जेन्युइन नोटिस आया था, इज्जत से आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगा रहे थे, आपने नहीं दिए. ठीक है ना. 131 में आपको देसी पावर यूज किया गया, उन्होंने समन इश्यू किया था, आप नहीं गए. ठीक है ना. और आप विजय माल्या हो. ठीक है ना. विजय माल्या हो मतलब सर आपको इश्यू, अगर समन वगैरह इश्यू किया भी जाएगा ना, राय नोटिस दिया भी जाएगा तो टाइम पास ही होगा, आप आने नहीं वाले हो, हमें कंफर्म है. ठीक है ना. आप अगर दाऊद इब्राहिम के कोई रिलेटिव हो इंडिया में, आपको नोटिस देके कुछ मतलब नहीं, हमें पता है आप नहीं जाओगे. ठीक है ना. तो माइट बी इश्यूड टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स. द असेसी फेल टू प्रोड्यूस और विल नॉट प्रोड्यूस सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट.
तो हम बता रहे कि आपको नोटिस आया था डिपार्टमेंट का, या तो 142(1) का या 131 का, और आपने रिप्लाई नहीं दिया। और माइट बी इशू का मतलब क्या होता है कि आपको नोटिस देके कुछ मतलब ही नहीं है। हमें 100% पता है, even if we serve notice on you, you are not going to show up, you are so arrogant। आप लोगों को टाइम और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया पहली पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, ये तो वो लोग हो गए जो लोग एक्चुअल में असेसी लोग हैं, ये टैक्स के चोर हो गए, ठीक है ना। ये ओरिजिनल असेसी है जो टैक्स का चोर है। बी मतलब ऐसे लोग जो उनके असिस्टेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो असेसी नहीं होते, या शायद असेसी होते भी है शायद नहीं भी होते। जैसे रेड मूवी में भी आपने देखा होगा कि जो सेठ जी थे उन्होंने ब्लैक मनी नहीं छुपाया था घर में। आर यू गेटिंग दिस? जो सेठ जी थे, मेन जो पॉलिटिशियन था, ही डिड नॉट हाइड एनीथिंग इन द हाउस। याद आ रहा है क्या? उसको भी नहीं पता था कि अपने घर में इतना सारा ब्लैक मनी है। व्हाइट हाउस में तुम लोग ने मूवी देखा है कि खाली ऐसे मतलब एग्जाम ओरिएंटेड देखा था कि बस मजे लेने के लिए देखा था? डू यू रिमेंबर कि वो पॉलिटिशियन जो रेड मूवी में दिखाया गया है, नॉट सीन, वो माय गॉड, यू हैव टू सी दिस मूवी। डोंट सी फॉर एंटरटेनमेंट, सी इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये प्रोविजंस के लिए देखो प्लीज। वो जो पॉलिटिशियन होता है ना, उसका खुद का पैसा नहीं होता, वो तो घर वालों ने पॉलिटिशियन का नाम यूज कर करके ब्लैक मनी छुपा के रखा होता है। तो सर जरूरी नहीं है कि जिसका पैसा है उसी के ऊपर रेड आए। कभी कभी तो रेड ऐसे लोगों के ऊपर जाता है कि जिसने खाली पैसा स्टोर करके रखा है अपने पास। अभी भी आपने देखा, वो मैंने आपको तमिलनाडु का न्यूज दिखाया जहां पे द ऑपरेशन पार्किंग मनी करके किया गया था। लास्ट न्यूज जो दिखाया था, ऑपरेशन पार्किंग मनी। पार्किंग मनी मतलब समझते हो क्या? सारे बैग्स में, सारे ट्रैवलर बैग में पैसे छुपा के रखे थे, और एक बिल्डिंग के नीचे जितनी कार पार्क की गई थी ना, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के नीचे जितनी कार पार्क की है ना, हर कार में गोल्ड और कैश था। शायद उनको न्यूज आया होगा, टिप आया होगा कि रेड आने वाला है, तो उन्होंने क्या कर दिया, सारे कार में पैसे पैसे और गोल्ड छुपा के रखे थे। या तो उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा था कि वो घर में तो कैश रखते ही रखते थे, कुछ पैसे तो वो कार्स में भी रखते थे। उस बिल्डिंग के नीचे जितनी कार पार्किंग थी ना, सारे कार में पैसे थे। राइट, अभी तो तमिलनाडु का आपको न्यूज दिखाया मैंने। तो सर अब ये कार किसकी है वो हम इससे लेना देना नहीं है, ये कार में पैसे थे ना वो इंपॉर्टेंट है। एनी पर्सन इन इज इन पोजेशन ऑफ एनी मनी, ज्वेलरी, एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स और सच असेट which has not been disclosed, मतलब undisclosed asset, or would not be disclosed if the for the purpose of income tax act। या तो आपने डिस्क्लोज नहीं किया और आप कभी डिस्क्लोज नहीं करोगे, ऐसा जैसे इनके पास टिप आ जाता है, जैसे ये लोग का अश्योरेंस हो जाता है कि सर ये ऐसा कुछ तो होने वाला है, तो वो लोग रेड कर सकते हैं। द रीजन टू बिलीव as recorded under this section shall not be disclosed, shall not be disclosed। ये भी मैं रेड मूवी के एग्जांपल से दूंगा आपको। shall not be disclosed to any person or authority or the appellate tribunal। आप किसको नहीं कर सकते हो, किसी भी पर्सन को नहीं बता सकते, किसी अथॉरिटी को नहीं बता सकते, किसी एपेलेट ट्राइब्यूनल को नहीं बता सकते। आपको पता है ना, उसके घर में ही एक टिप देने वाली लड़की होती है। घर के लोग ही टिप देते हैं ना। तुमने मूवी का एंड देखा है क्या? सेठ जी जेल में बैठ के फैमिली चार्ट बनाते हैं। नहीं नहीं, आजी भाई नहीं, आजी भाई तो देती है वो अलग बात है। आजी भाई तो हिंट देती है, टिप नहीं देती। आजी भाई तो जेन्युइन होती, बोलती है पिलर अभी था ही नहीं इधर, नया पिलर आ गया। सेठ जी जेल में बैठ के ना एक पूरा फैमिली चार्ट बनाते हैं कि इन किसने टिप दी होगी इसकी। पूरा फैमिली चार्ट बनाते हैं और सोचते रहते हैं कि ये टिप किसने दी। मुझे बताओ, किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी भी अंडरवर्ल्ड डॉन का, अगर आपने इनकम टैक्स को टिप दिया, अगर आपने इनकम टैक्स को टिप दिया, तो आपको नहीं लग रहा थोड़ा डेंजरस हो जाता है आप लोगों के लिए? हेलो, हाँ। डेंजरस हो जाएगा ना। तो आपका नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि अनडिस्क्लोज रहना चाहिए? हाँ हाँ सर, नाम अनडिस्क्लोज होना चाहिए।
गया। आपको गवर्नमेंट को टैक्स इवेजन मैटर बता बता के अगर पैसे कमाने हैं तो उसका भी एक नया स्कीम निकाला है, ये देखो। IT डिपार्टमेंट न्यू स्कीम, इन्फॉर्म गवर्नमेंट अबाउट द टैक्स इवेजन एंड गेट रिवॉर्ड अप टू 5 करोड़। The central government has launched income tax informants reward scheme 2018, under which a person can get reward up to 50 lakh for giving the specific information. अभी 5 करोड़ कर दिया उन्होंने। The central government has launched income tax informants reward scheme 2018 after, चलो ठीक है, ये पहले वाला पुराना था, अभी नया कितना हो गया है? 5 करोड़। Anyone who informed the Benami properties can get reward up to 1 crore. The scheme come into effect from 1st June. लॉन्च किया है मोदी अंकल ने अगेंस्ट ब्लैक मनी एंड टैक्स इवेजन केसेस। अंडर द स्कीम अ पर्सन विल बी कंसिडर इन्फॉर्मेंट इफ ही शी इज एंड शी और ही फर्निश स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आप जनरली किसी का भी नाम नहीं डाल सकते हैं यहाँ पे कि राम पटेल के पास शायद ब्लैक मनी होगा, ये अपने बैच में पांडा है उसके पास ब्लैक मनी होगा, ऐसा किसका भी नाम नहीं दे सकते आप। सब ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, तो ऐसा रैंडम नाम नहीं देना है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना है आपको डिपार्टमेंट को अबाउट द टैक्स इवेजन इन रिटर्न स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब इन एनेक्चर। तो ऐसा सारा बोला गया था। तो ये आप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये भी पुराना वाला स्कीम है, ठीक है ना। ये पुराना वाला स्कीम है जहां पे आपको ना फिजिकली लेटर लिखना पड़ता था डिपार्टमेंट को, तो यहाँ पे और थोड़ा रिस्की हो जाता था। अब इसके अलावा भी एक नया स्कीम निकाला है गवर्नमेंट ने, ठीक है। एक नया स्कीम निकाला है, इधर गया वो लिंक नहीं मिल रहा है मुझे। एक मिनट।